और जिससे जो यूथ को डिजिटली equip करके उनको employment दी. Sanjeev, it is commendable to you. My dear friends and fellow chartered accountants, I think we, the small and medium practitioners, are the economic driver of the economy. And this is a great opportunity in which we are today due to this COVID lockdown and adapting this brilliant technology of video conferencing. I think it is a great opportunity to learn what we can say to drive in our careers. Because opportunity क्यों है मैं बताता हूँ आपको. मेरे हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी में काफी ज्यादा बिजनेस में रिशफलिंग होने वाली है. So after the pandemic also the world is going to change because change is the only permanent thing. So since the world is going to change, so that the look, feel and shape of the business, career, employment, compliances, everything is going to change. And since we as a professional financial experts, we are equipped with the technology and with our institutes guidelines, we are ready to take that challenge. उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही, आई थिंक कैपिटलाइज करना, ग्रैब वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड, बट उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना, आई थिंक दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस. आई एम हियर. I would like to give you, because chairman has said that we have to speak for 5 minutes. My 3 minutes are over. In 2 minutes, I will give you 3 success mantras. What we can opt for doing after post pandemic situation, and for this SMP डे में अपनी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या किया जाए. फ्रेंड्स, आई वुड से कि नंबर 1, वी आर लाइक ऑल द सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन and Rajesh Digriwal ji, Atul Seth ji, and we are the product of 90s. So 90s में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर जो हुआ करते थे, they brought the liberalization in the country, and we are the product and the successful chartered entrepreneur, I would say, of that era. I think that आज की डेट में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चला है, so I again look back to those 2 decades back कि जो हम लोगों ने किया वो अगर आप लोग भी करोगे, so then you will go ahead. That was out of the box thinking. So I would say you to think differently what we can do, the way Sanjeev has done this Bhavishya Kiran. It's a beautiful program, Sanjeev. And after the seminar, I would like to ask you what exactly. Friends, think differently. Number 1. Number 2, sit tight on your cash. Cash is going to be the king post lockdown, and जिसके पास cash है, liquid है, so he is the king. Number 3, look for great opportunities with that capitalization and with your professional expertise. And number 4, learn, study, and look for the opportunities for in the expert field. I think that's the key. I won't take much of time. Wish you very, very best of luck and heartiest congratulations for this beautiful small and medium enterprises day, and my good wishes to each and every chartered accountant of this Amritsar branch. And before I sum up, I would again congratulate the entire team led by Sanjay Arora ji and Shashipal ji for this beautiful seminar. Thank you very much. Thank you, Devinder sir, for your inputs and guidance to Amritsar branch, to members of Amritsar branch. Sanjeev Sanghi is a tech-savvy fellow chartered accountant with 20 years of experience as an entrepreneur in international fintech industry. Presently, he works with 300 plus overseas clients and provides an end-to-end tech-based consulting and accounting solutions. He's author-affected personality. He's presently the co-opted member of Digital Accounting and Assurance Board of ICI and chairman of the IT Committee of Association of Corporate Advisors and Executives, ACAE Merchants, Chambers of Commerce and Industry, and advisor to other reputed forums. He has formerly served as the Secretary of Eastern India Regional Council of ICI. There are more. Shashi ji, I think that is more than enough. Let's get started. There are many more things in their profile, but I cut short it. Now I request CA Sanjeev Sanghi ji to kindly start your session. Thank you, Shashi ji. Good morning and Sat Sri Akal to all of you. I would like to thank Chairman Sanjay Arora ji of Amritsar branch for giving me this opportunity. Davinder ji, thank you so much. आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया और
जो आपने शुरुआत किया, जो भूमिका बनाई, आई थिंक अपना रोड मैप वहीं पर ही है. So I'll straight away give you the entire itinerary of today. आज मेरा बैक टू बैक 3-4 इवेंट है, तो आई विल बी लीविंग बाय 12 o'clock. सो मैं कोशिश करूंगा अपना प्रेजेंटेशन 30 मिनट्स के अंदर सम अप करने का, बिकॉज मैं जानना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जरूर करना चाहूंगा. आप इस पूरे प्रोसेस में कभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए, आप चैट में डाल सकते हो, एंड आई बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस एज एंड व्हेन इट कम्स. So let me quickly share my screen and we'll straight away go to the discussion what we had today. आज की डेट में ये एक बहुत ही अलग हट के टॉपिक है. मैं 98 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, और तब से मैं ये सुन रहा था, समझ रहा था कि हम मार्केटिंग नहीं कर सकते, हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते. हमारे ऊपर कई सारी गाइडलाइंस है, कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके अंतर्गत हम उसको प्रमोट नहीं, वी कैन नॉट प्रमोट आवरसेल्फ. आज की टॉपिक उसी चीज की जवाब है कि वी कैन रियली डू दैट, बट वी नीड टू लर्न हाउ वी कैन डू दैट. जैसे देवेंद्र जी ने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही कि अब हमें बदलना होगा. वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, वी हैव टू वर्क डिफरेंटली, वी हैव टू accept the current situation, adapt to it and take it forward. मैं आज सिर्फ अपनी एजेंडा को रेपुटेशन के ऊपर रखूंगा. रेपुटेशन एक बहुत बड़ी चीज है. आज मैं जब देवेंद्र जी का इंट्रोडक्शन सुन रहा था, तो एक पास्ट चेयरमैन के अलावा उनको एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के हिसाब से भी बोला जा रहा था. दैट इज अ रेपुटेशन. इसी को हम लोग रेपुटेशंस बोलते हैं. Benjamin Franklin has said very nicely that it takes many good deeds to build a good reputation, but only a one bad one to lose it. और आज हम बात करेंगे how we can create a reputation to grow our firm digitally. ये हम लोग आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले क्या करते थे, और आज हमें क्या करना पड़ेगा, वो चेंज इन अप्रोच, जिससे कि हमें सिर्फ क्लाइंट अमृतसर से नहीं, हमें पूरे वर्ल्ड से क्लाइंट मिले. ये हमारी कोशिश होनी चाहिए. So the first thing which I wanted to share with you is that it's time to create a digital existence. By the way, my presentation is very clear to all of you, right? Hope everyone is able to see my presentation. Yes? Thank you. So आपने देखा होगा इसमें कीबोर्ड और बहुत सारी ग्रेवयार्ड्स है. तो ये डिजिटल एग्जिस्टेंस होता क्या है? And what is this all about and how is this important to us? ये हमें समझना होगा कि आज के डेट में अगर हम google.com में जा रहे हैं, and I want all of you to please do this exercise with me, कि अगर आप google.com में जा रहे हैं and if you type in your name, अगर आप उसके पहले पन्ने पे आ रहे हो, like मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ. If I am going to my google.com and I'm just typing in my name Sanjeev Sanghi. Everyone is seeing my screen right now with Google? Yes. Yeah. Okay, great. अगर मैं इसमें सिर्फ संजीव सांगी टाइप करता हूं and I press enter, you can see the entire page is about me. यहाँ पर कोई दूसरा बंदा है नहीं. You can see my videos over here. अगर मैं images क्लिक करता हूं तो सब कुछ मेरे बारे में है. So this is what is called digital existence. अगर आपका गूगल में आपका नाम नहीं है, तो इसका मतलब है, अगर पहले पन्ने में आप कहीं भी नहीं हो, एक बार भी नहीं हो, इसका मतलब आप आज के डेट में डिजिटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम डिजिटली एग्जिस्ट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. जैसे आज आप देख पा रहे हो कि I speak to people in across the country. हम लोग यूएस में भी वेबिनार्स करते हैं, हम लोग हर जगह वेबिनार करते हैं. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस व्हिच इज डिजिटल. तो आज के डेट में एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड लोग आपको वहां से पहचानेंगे, वहां से कनेक्ट करेंगे और वहां से आपके पास आने की कोशिश करेंगे. तो पहले क्या होता था, जब हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, हाउ टू ग्रो आवर क्लाइंट, हम लोग
like when I started my practice, क्या होता था कि हमारे रिलेटिव या हमारे क्लोज फ्रेंड हमसे मिलते थे, हाथ मिलाते थे, हम बोलते सर हमसे काम शुरू कीजिए, वो अपने से काम शुरू करते थे, एंड देन हम अच्छा काम करते थे, हमारी स्पेशलाइजेशन होती थी, एंड देन पीपल स्टार्टेड recommending us to our friends and relatives, and that's how the chain has followed and we started growing our practice. That was the traditional way. आज हम बात करेंगे कि हम डिजिटली अपने क्लाइंट को कैसे बढ़ा सकते हैं. ट्रस्ट मी, आज अगर हमारे पास जितने भी क्लाइंट है, पूरे वर्ल्ड के क्लाइंट मेरे पास है, एंड कोई भी क्लाइंट को मैं जानता नहीं हूँ, मैं पहचानता नहीं हूँ, दे ऑल हैव कम टू मी, दे ऑल हैव कनेक्टेड विथ मी एंड दे आर नाउ माय क्लाइंट्स, एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम. और अब नहीं हो रहा है. आई रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर इफ यू कैन म्यूट वरुण जी. तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना पड़ेगा. नो, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. I will share this PowerPoint also with the chairman. We can circulate it to the entire branch members. I will definitely share this PowerPoint. But first step is you need to have your digital visiting card, which can be searched on Google. Now, how do we do that? अगर आप business google.com में over here on the first hand, आपको टाइप करना होगा business.google.com. अगर आपके पास आपका Gmail ID है, so what you have to do, you have to type in business.google.com. You have to put on all the information relevant to you. Your name, your address, your specialization, everything, whatever you have appointment, your services, you can put up anything you want. And Google में अगर आप अपना business card बना लेते हो, तो everyone in this world, more than 98% of the people search through Google. And this is not against code of conduct. उसमें भी अपने बात करेंगे what there which we have to abide with the institute code of conduct. कहाँ अपने को करते हैं और कहाँ नहीं है. Now, what is this code of conduct? ये जो अपने पास एक भ्रम है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, आई एम इनटू द बोर्ड, सो यू कैन ट्रस्ट मी. अगर मैं कुछ तो एक कमिटमेंट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ. इंस्टीट्यूट कहती है, द इंस्टीट्यूट सेज दैट वी कैन नॉट हैव अ पुश मॉडल, बट वी कैन ऑलवेज हैव अ पुल मॉडल. व्हाट इज अ पुश एंड अ पुल मॉडल? मैं आपको समझाता हूँ. In a push model, what happens is that I will push myself to you. I will say, I'm the best chartered accountant of the country. I am the cheapest chartered accountant of the country. मेरे से सस्ता कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है. Those are violent. Those are against. But if I promote my specialization, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, and I'm trying to write an article on that, create a video of that, I'm trying to share my professional experience with fellow members, I'm trying to talk in webinars, I'm trying to create a persona of myself. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पुल मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ. I'm trying to become a magnet wherein people are getting attracted towards me and they know me for my name. मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ. If I say you Sachin Tendulkar, what is that first which comes to your mind? Cricket. वैसे ही अगर मैं अमिताभ बच्चन बोलूंगा तो आप एक्टर आएगा. Now, if I talk in our profession, we all know Bimal Jain, right? Jain तो आपने नाम सुना है, right? But जैसे हम बिमल जैन की बात करते हैं, GST माइंड में आता है कि he is a expert on GST. तो उसने अपना पर्सोना है, वैसे ब्रांडिंग बनाई है. जैसे ईस्टर्न इंडिया में कुछ भी आईटी बात होती है, एनीथिंग अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल नोज बाय नेम कि संजीव आईटी का बंदा है. तो वैसे आपको पर्सोना बनाना पड़ेगा. और वो कैसे बनाना है, हम लोग अनदर 15 से 20 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू हैव अ वेबसाइट. मैंने संजय अरोड़ा जी से सुना कि ब्रांच इज कमिंग अप विद देयर ओन रिवैम्प्ड वेबसाइट और अ न्यू वेबसाइट. डेट में वेबसाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हम लोग को लगता है कि व्हाट इज अ वेबसाइट? वेबसाइट इज जस्ट अ विजिटिंग कार्ड. क्या उससे मुझे क्लाइंट मिलेंगे? क्या लोग मेरे पास आएंगे? ट्रस्ट मी, आज में अब जो पोस्ट कोविड दुनिया होने वाली है
उसमें आपके सारे क्लाइंट वेबसाइट के थ्रू आपके पास आएंगे। वो कैसे आएंगे वो हमने डिस्कस। दिस वेबसाइट कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, संजीव वेबसाइट कैसे बनाए, क्या यूज करें, किस तरह से बनाए? तो ये विक है, वर्डप्रेस है, वीबली है, आप इसमें से कोई भी टूल में अगर जाते हो, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। यस, ये विक, इसमें अगर आप जाते हो एंड यू हिट ऑन क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, 2-3 क्लिक के अंदर आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। बिजनेस लिखते हो, आप सिलेक्ट करते हो, आप बोलते हो क्रिएट योर वेबसाइट विद एडिटर, क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू। मैं इसको स्टार्ट करता हूं एंड मैं इसमें अपना क्वेश्चन आंसर्स भरते जाऊंगा, वो साइट बनती जाएगी। मैं इसमें टेम्पलेट सिलेक्ट करूंगा, मुझे कंसल्ट पर टेम्पलेट चाहिए, मैं इसमें से कोई टेम्पलेट सिलेक्ट कर लूंगा, मैं इसमें बटन बना दूंगा एंड मैं अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकता हूँ। मुझे किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है। और जब मेरी वेबसाइट बन जाती है, आई जस्ट नीड टू बुक डोमेन फॉर माय फर्म, आई नीड टू बुक अ होस्टिंग स्पेस, जो GoDaddy में, रजिस्टर में, ऐसे हजारों वेबसाइट है। तो मेरा साल का 2,000-3,000 रुपया खर्चा होता है और मेरी अपनी वेबसाइट बन जाती है, which talks about me, which talks about what I do, which talks about my specialization, which talks about all the good things, talks about my articles, sources, ये सब कुछ कर सकते हैं। So please make sure that everyone's listening to my webinar, make a resolution that by this year end, you should have your own dedicated website. और ये एक बहुत बड़ी दुनिया, इसका पूरा 1-2 घंटे का प्रेजेंटेशन हो सकता है, बट आज मैं बहुत सारी चीजें को लेकर आया, I will try to touch each and every relevant point to you. सेकेंड, आपकी वेबसाइट बन जाए। आज अपने बात कर रहे हैं, अपने वेबसाइट बनाने का सेमिनार नहीं कर रहे, अपने बात कर रहे हैं संजीव, एंड ऑफ द डे मुझे क्लाइंट चाहिए, आप, मैं अपना फर्म ग्रो कर सकता हूं। तो आप मुझे आज बताओ, हाउ कैन आई ग्रो माय फर्म एंड हाउ कैन आई ऐड न्यू टू इट? तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है एनालिटिक्स। जब आप एक वेबसाइट बनाते हो, उसमें जाल बिछाओगे, वो जाल क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी है जो आपको पूरा मॉनिटर करके देगा, लोग आपके कौन से पेज में जा रहे हैं, किस पेज में कितना समय बिता रहे हैं, कितनी बार वो लोग रेगुलर विजिट कर रहे हैं। और इसके ऊपर जब आप जाओगे तो आप एक CRM टूल में जाओगे, जो मैं एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा, जहां पर आप और दूसरी बात कर रहे हो कि भी कि कौन कौन लोग मेरी साइट में आ रहे हैं, कितने बार क्लिक कर रहे हैं, किस चीज को डाउनलोड कर रहे हैं, और वो आपके फॉलोअर्स बनने लग जाते हैं, वो आपके पसंदीदा बनने लग जाते हैं, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और जब लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैग्नेट बन गए। इसका मतलब हुआ कि वो या तो आपके क्लाइंट बनेंगे या आपको कोई रेफरेंस ला के देंगे, बट वो आपसे जुड़ गए हैं, वो आपके नेटवर्क में जुड़ गए हैं। तो ये गूगल एनालिटिक्स का रोल प्ले करता है और बहुत सिंपल है। आप गूगल एनालिटिक्स में जाके देखोगे, आपकी वेबसाइट के साथ सिर्फ इसको अटैच कर देना है, आपको हमेशा एक डैशबोर्ड मिलेगा। ब्लॉगिंग, ये तीसरा स्टेप है कि हमारे ब्लॉग्स हमें लिखना पड़ेगा कि आज हम क्या ब्लॉग करते हैं। हमारे आज लोगों को कैसे पता चले, हाउ विल पीपल गेट टू नो दैट आई एम वेरी गुड इन ट्रांसफर प्राइसिंग, आई एम वेरी गुड इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन, I do international taxation, I am really an expert onto the real estate industry, and that industry is something which I know more than anyone else. I'll just give you a background behind this. We work for all the pest control companies in America only. So all my clients in America are all pest control companies. And we go back and say we don't want to take any other clients. So वो pest control वाले भी देखते और समझते हैं कि भैया this person knows my industry more than any other accountant, because we don't talk about their compliances, we don't talk about their balance sheet, we talk about how they can grow, how they can make their firm valuable, what is their labor percentage, what is their material percentage, what is that which is lagging them behind, how can we compare their balance sheet or their numbers with the industry standards. So they come to us and say, sir, my chartered accountant or my CPA was only filing my tax returns. You are the person who is understanding my industry. You are helping me grow.
And that is what is required from all of us. We need to be either a service specialization or an industry specialization. हमें चुनना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं. अब वो जमाना खत्म हो गया, जैसे रविंदर जी ने कहा, कि हम एक मोदी खाना की दुकान चला रहे हैं जहां पर आपको क्या चाहिए बताइए और हम आपको करके दे देंगे. It's all about specialization, specialization and specialization. The more you focus on choosing one subject and specializing on it, the success you will get. फिर आप उसकी ब्लॉग लिखना शुरू करोगे, आप उसके बारे में बताना शुरू करोगे और आपके आसपास के हजारों लोग समझ जाएंगे कि आप हो जो ये कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं कर सकता. Create your own YouTube channel. Now YouTube हमें कैसे हेल्प करेगा, मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं. अगेन मैं आपको बिमल जैन की तरफ लेके जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये तो मेरी सब्सक्राइबर है, बट अगर मैं बिमल जैन के बुक, आई ऑल्सो डू कंसल्टिंग फॉर का बंदा है, मैं किसी सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं. नाउ व्हाट डिड ही डू, उसने क्या कि अगर आप इसके अंदर, तो इन्होंने, आप अपने तरफ लोग को खींच रहे हो, यू आर नॉट पुशिंग थिंग्स. ये किसी के पास नहीं जा रहा है, ये पुल कर रहा है. ये आपको सीखना पड़ेगा कि अपनी एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके, अपनी एक स्पेशलाइजेशन को आइडेंटिफाई करके आप अपना एक चैनल बनाओ, उसमें आप उसके बारे में बताओ, एंड पीपल विल स्टार्ट गेटिंग टुवर्ड्स यू. YouTube is an amazing tool to help you grow your followership and to grow your clients. आगे बढ़ते हैं. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि कभी भी किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझसे पूछ सकते हो. वेबिनार्स जो मैं कर रहा हूं अभी, जो आप लोग बहुत लोग कर रहे हो, ये बिल्कुल शर्म की बात नहीं है. यू कैन टॉक इन हिंदी, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन पंजाबी, यू कैन टॉक इन एनी लैंग्वेजेस, बट स्टार्ट डूइंग वेबिनार्स. वेबिनार से आपकी पहचान, आपकी पहुंच, आपके नेटवर्क, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं. And people start to know more about you. But please, once you start your practice, make sure कि आप किस direction में जा रहे हो. आपको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा. Like I have chosen a goal to only work on automation, only work on technology. मैं बात करता हूँ automation की, मैं बात करता हूँ Power BI की. I talk about how we can do work at the click of a second. मैं बात करता हूँ रिपोर्ट्स की, कि कैसे आप डैशबोर्ड किसी भी क्लाइंट का, किसी भी कंपनी का एक बटन क्लिक पे उसके बारे में, उसकी पूरी कंपनी के बारे में 1 मिनट के अंदर उसको पता चल जाए. ऐसी रिपोर्ट बनाता हूं मैं, और वो ऑटो क्लिक हो सकता है, ऑटो अपडेट हो सकता है. दिस इज माय स्पेशलाइजेशन. व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन एंड हाउ यू आर कैरिंग दैट आउट इज व्हाट यू नीड टू स्टार्ट डेवलपिंग योरसेल्फ. और ये सबसे बेस्ट टाइम है, ये कोविड का टाइम जो है, ये सबसे बेस्ट टाइम है अपने आप को अपग्रेड करने का, स्पेशलाइज करने का और उस दिशा में जाने का. And there are various tools. I think many of you must be knowing it. GoToWebinar, Zoom, Google Hangout, Zoho Meet. आप कुछ भी tools use कर सकते हो. अब और फ्यूचर की बात करते हैं. पॉडकास्ट, ये एक और अच्छा टूल है. जैसे शैलेश हरि भक्ति इज माय पार्टनर, ही इज बेस्ड इन मुंबई. इन्होंने भी पॉडकास्ट शुरू किया. मन की बात आप सब जानते हो, मोदी जी का. ये क्यों फ्यूचरिस्टिक है कि आप जब मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, इसमें कोई वीडियो नहीं होते, इसमें सिर्फ ऑडियो होते हैं. जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आप अपनी रोज की गतिविधि में हो, आप कान में ऑडियो लगा के सुन सकते हो. जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दिखाता हूं, so that you get a vision of what I'm trying to talk. Just 1 second. इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए सब खोल के रखा हुआ है आपके लिए. ये आप देखिए, ये एप्पल का भी पॉडकास्ट है और इसका गूगल का भी पॉडकास्ट है. तो इसमें आप अपनी टॉपिक रख के एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड देन इसमें लाखों लोग आपके बारे, आपकी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे. पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू. So this is definitely futuristic. I have 10 more minutes and then I will definitely want to listen lot of interactions and questions from all of you. अब बात करते हैं कि ये सब कुछ समझ में आ गया, अब मैं क्लाइंट तक कैसे पहुंचूं. तो ये कुछ चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप एक मैग्नेट बनते हो और क्लाइंट आपके पास आते हैं. अब ये पूरी जाल बिछानी पड़ती है. हाउ डू यू क्रिएट किनको बनी है वाले दूसरेगा खुले रखम वो अनमत अंधा पे बंदा. I request all of us to please mute Rakesh ji.
तो ये जो जाल बनती है, ये मैग्नेट बनता है। ये मैग्नेट कैसे बनता है? When you identify a CRM, ये कब आप करोगे? जब आप एक इस सोच में, इस माइंडसेट में आ जाओगे, अपने आप को एक डिजिटली एग्जिस्ट करवाओगे, आपकी वेबसाइट बन गई, आपके ब्लॉग्स लिखने शुरू हो गए, आपने एक रास्ता चुन लिया। अब आप क्या करोगे? आप उस रास्ता में आपको आगे बढ़ना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से यू डिसाइड that I want to be a super expert on transfer pricing. One, oh, I want to be a super expert on a paper industry. कि पेपर इंडस्ट्री में मैं एक ऐसा सीईओ जो इंडिया के कहीं के भी क्लाइंट हो, पेपर इंडस्ट्री के बारे में मेरे से अच्छा कोई नहीं जानेगा। तो आप या तो इंडस्ट्री चूज करो या आप एक सब्जेक्ट चूज करो। उसके बाद आप एक सीआरएम बना रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ सीआरएम टूल, और उस सीआरएम टूल को आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्ट कर रहे हो, विच मीन्स यहां तक बात चली जाती है कि इफ एनीबॉडी इज गोइंग इनटू फेसबुक एंड हिटिंग अ लाइक, यू गेट टू नो कौन किसने लाइक क्रिएट किया, किसने कमेंट पास किया, किसने ट्विटर में आपके साथ क्या किया, किसने आपकी वेबसाइट में जाके ये किया है। तो ये जो जितनी भी गतिविधियां आपके चैनल्स में हो रही है, आपके पास वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस बनते जा रहे हैं, और वो डेटाबेस में एक लीड स्कोर क्रिएट होता है। नाउ व्हाट इज अ लीड स्कोर? जैसे अपने टीवी में टीआरपी होते हैं ना, वैसे हमारे इस इंडस्ट्री में इसको बोलते हैं लीड स्कोर। मतलब इमेजिन कीजिए, आपने अगर 5000 कंपनीज का एक डेटाबेस बनाया पेपर इंडस्ट्री का, और आप उसमें अब फिशिंग करना शुरू कर रहे हो, तो यू स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स टू देम, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाउ यू आर स्पेशलाइज्ड सो फार एज पेपर इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड। आप उनको बताओगे कि भैया मुझे पता है आपका टैक्स कैसे बचेगा, मुझे पता है आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज की बेनिफिट मिलेगी, मुझे पता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको लेके क्या है, मैं आपके इतना जानता हूं, पूरे इंडिया में कोई नहीं जानता। ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। और जब उस 5000 आदमी को आप बार बार भेज अपना अच्छा रिसर्च, अपनी थॉट्स, अपने आर्टिकल्स, तो आपको पता चलेगा उस 5000 लोग में से 500 लोग ऐसे हैं जो आपके फॉलोअर्स बन गए। फिर आप उसका लीड्स को टेस्ट करना शुरू कर दिए, चेक करना शुरू गए, तो उसमें से 100 लोग ऐसे हैं जो आपके दीवाने बन गए हैं। अब बस आपको एक ही काम करना है। अगर आपने उनको कॉल कर दिया ना, तो वो बोलेंगे सर हम आपको 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं सर, हमारे सीए तो आके सिर्फ टेक्स्ट बना देते हैं, आई वॉन्ट टू गेट यू ऑन बोर्ड विथ मी सो दैट यू कैन हेल्प अस ग्रो। ये हुआ प्रोसेस सर। इसमें अपने आगे चलते, जैसे मैं बात कर रहा हूँ फनल मार्केटिंग की, इसको बोलते हैं फनल, जहां पर आपने अपने जो टारगेट ऑडियंस है, जो भी आपके टारगेट ऑडियंस, उसको आपने फनल में डाला, और उसके बाद उसको छानते हुए उसके इंटरेस्ट, उसके कंसिडरेशन, उसके कन्वर्जन्स, ये छानते हुए ये आपके क्लाइंट बनते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। बट शुरुआत आपको कहां से करनी है कि पहले आप अपने आप को डिजिटली एग्जिस्ट करवाइए, अपनी वेबसाइट बनाइए, अपनी पहचान बनाइए, अपने सब्जेक्ट को चुनिए और उसमें स्पेशलाइज करना शुरू कीजिए ना। अगर आप देखेंगे ये सीआरएम टूल जिसको बोलते हैं क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये कभी भी हम लोग ने सोचा नहीं था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये भी करना पड़ेगा। हमेशा से हम लोग एक टैक्स ऑडिट और इसकी बात करते हैं, जीएसटी की। बट आज के डेट में इफ यू वांट अ क्लाइंट फ्रॉम दुबई, फ्रॉम सिंगापुर, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम एनीवेयर, पीपल आर लुकिंग फॉर यू, पीपल आर सर्चिंग फॉर यू। वो गूगल में खोजते हैं कि आई हैव अ प्रॉब्लम इन पेपर इंडस्ट्री, आई हैव दिस इश्यूज इन पेपर इंडस्ट्री। जैसे वो एंटर मारेंगे ना, आपके ब्लॉग के साथ उनका क्वेश्चन मैच होगा, और जैसे मैच होगा आपका ब्लॉग का लिंक आ जाएगा। दे गो इनटू योर ब्लॉग, दे रीड योर ब्लॉग, दे गो इनटू योर कॉन्टैक्टर्स, दे गो टू योर वेबसाइट एंड दे कॉल यू। एंड दिस हैज हैपेंड टू मी। मैं क्विकबुक्स में, आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया हु इज ट्रेनिंग ऑन क्विकबुक्स। एवरी मंथ मेरे पास 15 से 20 इंक्वायरी अपने आप आते हैं कि वी वांट टू गेट ट्रेन्ड ऑन क्विकबुक्स। आई डोंट डू एनीथिंग फॉर देम। मैंने सिर्फ अपना एक फिशिंग चैनल बना के रखा। सो इफ यू सी ओवर हियर, अगर हम कांस्टेंट कांटेक्ट की बात करें, मेलचिम्प की बात करें, दीज आर प्रोसेस फ्रॉम वेयर यू कैन सेंड रेगुलर ईमेल्स टू योर टारगेट ऑडियंस। और उसमें आपने देखा होगा हमने कॉन्फ़िगर किया है कि जैसे ही ट्विटर में या फेसबुक में कुछ भी पोस्ट आएगा, कुछ भी कमेंट्स होगा, मैसेज होगा, वो लीड स्कोर में काउंट हो जाएगा।
So this is the entire process of converting your future clients, your digital clients towards you. और आप अपने आप को like I have very other presentation, जैसे मैं अभी डिब्रूगढ़ में जस्ट 12 बजे प्रेजेंट करने वाला हूँ, how to create your virtual office. So इसके आपको ये सीखना होगा कि आपकी ऑफिस आप कैसे वर्चुअल बना सकते हो. आप आपके एम्प्लॉयज, आपके क्लाइंट और आपका वर्क का पूरा वर्चुअल हो सकता है. मैं अपनी पूरी टीम को, मेरे पास 60 से 70 लोगों की टीम है, मैं उसको कहीं से भी मैनेज कर सकता हूँ, मैं उनको कहीं से भी देख सकता हूँ, वो क्या काम कर रहे, कितना काम कर रहे, मैं सब कुछ देख सकता हूँ. मैं आपको एक क्विक डेमो उसका दिखाता हूँ. ये सब छोटे छोटे टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे. अगर मैं अपने कंपनी में जाता हूँ, आई कैन इमीडिएटली, बहुत सारी चीजें मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम नहीं है, बट मैं यहाँ पर क्विकली दिखा सकता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे ऑफिस में आज 182 टिकट ओपन है, 182 टिकट्स आर ओपन, and this is the work which they are going to complete by today. I can do it by work type, I can do it by client, and I can see कि भैया आज के डेट में मेरे पास 15 बैंक रिकंसिलेशन करने क्लाइंट के. I can click on that. I can switch the work from one team members to another team members. So I can literally manage. I don't need to go to the office and talk to them कि भैया तुम ये काम करो, तुम ये काम करो. मैं एक क्लाइंट मुझे फोन करेगा तो मैं क्लिक में समझ के उसको बता पाऊंगा कि भैया आज के डेट में अगर मैं एक क्लाइंट में जाता, बस एक स्क्रीन और दिखा के we'll go back to our presentation, कि अगर एक क्लाइंट मुझे फोन करता है कि भैया मेरा काम का क्या पोजीशन है, I can simply go into that. And what I will do is that, go into that client, at a click of a second, I get to know who the client is, हम उसका साल में क्या क्या काम करते हैं, कौन सा काम आज के डेट में उसका ओपन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, सब कुछ मुझे एक क्लिक में पता चल जाता है. So this is how you have to take your practice to the next level. अब एक CTA की बात बताता हूँ. Now what is a CTA? ये कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करना. जब आप वेबसाइट बना लोगे तो वेबसाइट सिर्फ एक आपका विजिटिंग कार्ड नहीं होना चाहिए, उसमें कई तरह के कॉल टू एक्शन चाहिए. मतलब आपकी वेबसाइट में जाके लोग क्या बटन दबाएंगे, लाइक दे वांट टू चैट विथ यू, दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, दे वांट टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू, दे वांट टू डाउनलोड न्यूज़लेटर फ्रॉम योर वेबसाइट, वो आपसे कुछ हेल्प मांग रहे हैं. तो ऐसे को कई तरह के कॉल टू एक्शन डिजाइन करने पड़ेंगे. वो आपके फिशिंग स्पॉट हो गए कि उसको क्लिक करने से वो आपसे कनेक्ट कर पा रहे, वो आपसे बात कर पा रहे. So this is what, as I said, I'll complete my presentation by 11:40, and I will be very happy कि आपके मन में जो भी बात है, जिस तरह के भी questions है, जो भी practical difficulties आप face कर रहे हो, I'm happy to answer those and I will take it forward from there. देवेंद्र जी, can you moderate this? अगर किसी के मन में कोई भी questions हो, I'm very happy to answer. If not, I'll continue with lot of presentation with I have. Yeah, I can do it only with the permission of the chair. Devendra ji, go ahead. Devendra ji, go ahead. You have full move. Thank you so much, Mr. Chairman. Sanjeev ji, so it's actually a wonderful presentation, and the first slide, of the Benjamin Franklin. So सारा जो tone है उसी से set हो गया था कि it makes, so one need to lose your reputation, and I think we chartered accountant, and it is very important on today SMP day that the reputation is the only wealth, that's the biggest wealth with us for what we are known for. And since this is a compliance driven regime now, so we have to be more aware and careful of the reputation. दोस्तों कोई सवाल है तो तुसी आप कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं. तो मुझे लगता है कि it is very very important. How much time we have with us now to moderate this? We have. तो जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि कितने लोगों ने अभी तक अपनी वेबसाइट, मैं बताता हूँ आपको जी. ऐसा है जो आपने Wix बताया, it is friends, it is actually a very very useful tool. Even I have made my own website on Wix itself and a blog on in the Wix itself. It is absolutely free of cost. जैसे संजीव ने बताया, किसी एक्सपर्ट की आपको जरूरत नहीं है, उसमें इतने ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स हैं,
So even अगर आप अभी सेमिनार के बाद शुरू करेंगे ना, I can guarantee you by the evening you'll be able to make the web. Am I right, Sanjeev? एकदम एकदम 10 Yeah. मिनट 15 मिनट के अंदर, उसके बाद आप रोज उसको चेंज कर सकते हो, रोज उसमें Please throw some light on this, how one can make his website on the Wix. मैंने आपको बताया था, ये मैं उसमें वापस ले जाता हूँ विक्स में। ये टूल इतना इंटरेस्टिंग है, और ये सेम टूल आप इसमें भी यूज कर सकते हो, लाइक वर्डप्रेस के थ्रू भी आप बना सकते हो, वीबली के थ्रू भी बना सकते हो, बट मैं पर्सनली विक्स को रिकमेंड करता हूँ। ये 5 क्लिक में आप देख रहे होंगे कि ये आपको किस तरह की वेबसाइट, तो अपनी बिजनेस के लिए वेबसाइट चाहिए, आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना, देखिए सिर्फ बटन क्लिक पे है। अब इसमें से आप कोई भी कैटेगरीज चूज कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी के बेसिस में बनाना है, आपको कंसल्टिंग एंड कोचिंग में बनाना है, इसमें से कोई भी टेम्पलेट आप चूज कर सकते हो जो आपको लगता है कि मुझे ये पसंद आएगा, और उसको बस एडिट करके आपको देखिए ये पूरी वेबसाइट आपके सामने खुल, जिसमें आप जैसे ये आपके लिए बिल्डर बनना शुरू हो गया। इसमें आपको एक क्वेश्चनर फॉर्मेट में पूछेगा कि आपकी डोमेन क्या है, आपका नाम क्या है, आप क्या क्या सर्विसेज करते हो, और आप उसको बस ये देखिए, ये मेन्यूज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड, आपको कोई भी मेन्यू नया और ऐड चाहिए, एक और मेन्यू क्रिएट हो जाएगा, आपको किस तरह का सब चीज चाहिए, कैसे बटन्स चाहिए, ये आपका पूरा बटन बन गया, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करोगे बन जाएगा, पेज बैकग्राउंड आपको कैसे चाहिए, सब कुछ इसमें पॉसिबल। So this is, I think, a great tool for creating your own website, जो एक first start हो सकते हैं। इनफैक्ट ब्रांच का वेबसाइट भी आप खुद से कर सकते हो, you don't need to hire an expert for this, और उसमें फिर आप एनालिटिक्स जोड़ सकते हो, आप उसमें सारे सोशल मीडिया को इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं नहीं बताया था, कि ये जो फेसबुक लिंक्डइन, ये एक बहुत बड़े टूल बन चुके हैं। आज के डेट में लोग आपको वॉच कर रहे हैं। अभी जैसे मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ, कई लोग मेरे फेसबुक में जाते हैं, मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं, दे सी द एंटायर मैं 2 साल से क्या एक्टिविटीज कर रहा हूँ। तो आपकी फेसबुक एक स्टोरी बतानी चाहिए कि आप कौन हो, आपकी पहचान होनी चाहिए। सोशल मीडिया शुड बी योर आइडेंटिटी। सोशल मीडिया शुड नॉट बी यूज्ड बाय अस कि भैया हमने फलाने जगह चाय पिया है, हमने ये मस्ती की है, वो आपकी पहचान की रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज इट्स अ पब्लिक, इट्स ऑन अ पब्लिक डोमेन एंड इट हैज टू बी हैंडल्ड विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को राइटली सिलेक्ट करें और उसको प्रॉपरली ट्यून करें, सो दैट कि हम लोग इससे अपनी एक पोजीशनिंग कर पाए। Okay, I have a question from Gaurav Arora, who is saying, which is the office or client management tool that you would recommend? नहीं, ऑफिस मैनेजमेंट जो चीज है ना, ये एक सब्जेक्ट है। अब ऑफिस मैनेजमेंट में कई सारी चीजें आती है, लाइक हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर टीम, हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट, हाउ यू मैनेज योर प्रोजेक्ट, हाउ यू आप इनवॉइसिंग कैसे करोगे, आपको HRMS टूल चाहिएगा। बट अगर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें कि हमारे जो ऑफिस मैनेजमेंट है, बहुत सारी उसमें भी चीज, जैसे असाना आप यूज कर सकते हो, asana.com इज गुड, आप CCH iFirm यूज कर सकते हो, आप जोहो प्रोजेक्ट्स यूज कर सकते हो। आप अगर मैं उसका एक क्विक छोटा सा 2 मिनट का प्रेजेंटेशन दिखा दूं आपको, मेरे पास उसका कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, बट अगर इफ एवरीवन परमिट्स मी, मैं देखिए ये प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, हाउ टू मैनेज योर वर्क फ्रॉम होम यूजिंग टेक्नोलॉजी। इसमें सेकंड, यस, आप देखे होंगे कि इसमें मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपके पास स्काइप है, अगर आप इन हाउस कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपके पास स्लैक है, फ्लॉक है, टीम्स है, अगर आप रिमोट एक्सेस चाहते हो तो आपके पास सिस्को है, एनीडेस्क है, टीम व्यूअर है। पेपरलेस होना, जो मैं आपको एक लाइन में बोलूंगा, ये बहुत जरूरी है कि आपकी ऑफिस, जैसे मैंने कहा वेबसाइट आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी ऑफिस पेपरलेस होना द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर यू। आप अगर मुझसे थोड़ा भी मेरे से एक टेक अवे लेना चाहते हो तो प्लीज टेक अ रेजोल्यूशन दैट योर ऑफिस इज 100% पेपरलेस। ये 100% पॉसिबल है, और अगर किसी को भी क्वेश्चंस है, दे कैन ऑलवेज अनम्यूट एंड आस्क मी। इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी ऑफिस में एक सिंगल पेपर नहीं है,
हम लोग टैक्स ऑडिट भी करते हैं, जीएसटी भी करते हैं, यूएस का काम भी करते हैं, एक सिंगल पेपर नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए। हमें एक डेफिनेशन में आना होगा कि हमारे सारे क्लाइंट फोल्डर्स ऑर्गेनाइज्ड हो, हम एक प्रॉपर जगह एक्सेस कर सके और एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में हम काम कर सके। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की गौरव ने बात कही थी, यू कैन यूज जोहो प्रोजेक्ट्स, यू कैन यूज ट्रेलो, क्लिकअप बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, आप उसको देख सकते हो क्लिकअप को। CCH iForm एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको आप देख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, जो आज हमें पता ही नहीं होता है कि एक फलाना क्लाइंट पे हम कितना टाइम दे रहे हैं, एक फलाना कितना काम कर रहे हैं, तो आप क्लॉकिफाई जरूर यूज करो। उसमें आप अपनी टीम को बोल सकते हो कि भैया तुम जो भी काम कर रहा है, तुम उसमें बटन दबाएगा, जब वो काम खत्म होगा टाइम आउट दबाएगा, एंड यू कैन सिलेक्ट द क्लाइंट एंड द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन। सो ये आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा मंथली बेसिस में, ईयरली बेसिस में, कि फलाना क्लाइंट पे आपकी पूरी कंपनी ने कितना काम किया, कितना टाइम स्पेंड किया। तो ये सारे टूल्स है जो आपको बहुत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन हमेशा आ सकता है, सर व्हाट इज द बेस्ट टूल, सबसे अच्छा टूल कौन सा है? ये हम लोग सबका कॉमन क्वेश्चन होता है। सर सारे टूल्स अच्छे होते हैं, हमारा माइंडसेट होना चाहिए। आप किसी भी टूल से शुरू कर लो और फिर 6 महीने बाद अगर वो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है, आप उसको उठा के किसी और में जा सकते हो अपना डेटा लेके। ये एक उबर मॉडल है, जैसे अपने ओला उबर करते हैं ना, जितना आपने यूज किया उतना का ही आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप साल का, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सिर्फ 10-20-25 हजार रुपया आप साल का खर्च करते हो, तो आप अपनी ऑफिस को पूरी वर्चुअल बना सकते हो। हम लोग करोड़ों रुपए की चैम्बर बनाते हैं, करोड़ों रुपए की ऑफिस बनाते हैं। टुडे वी नीड अ वर्चुअल ऑफिस, एन ऑफिस जहां पर डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स, टीम, वर्क, सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज हो सके। ये हमारा विजन होना चाहिए। और इसी के लिए हमने एक डिजिटल अकाउंटेंट का एक मिशन चालू किया है कि एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट नीड्स टू बिकम अ डिजिटल अकाउंटेंट। तो कई सारी चीजें सर इसमें, कि आप अकाउंट को क्लाउड में लेके जाओ, क्विक बुक्स यूज करो, जोहो बुक्स यूज करो। अब ये मेरा क्वेश्चन है जी, यस सर, कैन आई पुट अ क्वेश्चन? या तो मेरा क्वेश्चन है कि आपने गूगल ड्राइव की बात करी, सो हम अपनी एक्सेल वर्कशीट्स वहां पे अपलोड कर देते हैं, राइट? बट वो अपलोड किए कराए वो सेम फीचर्स उसमें हमें नजर नहीं आते, सो देन वी अगेन हैव टू डाउनलोड एंड डू द वर्क एंड अगेन अपलोड। सो इज इट पॉसिबल कि वी कैन यूज इट लाइव? बिकॉज एकदम। एक्सेल का आपने जी, कभी गूगल शीट यूज किया है? हाँ गूगल शीट यूज किया ना, बट उसका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है उसके फीचर्स यू नो कुछ 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 सर कमी है, जो आप डेस्कटॉप में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको गूगल शीट में नहीं मिलेगा। बट आज के डेट में गूगल शीट एक लाइव है जहां पर आप 4 लोग मिलके एक साथ गूगल शीट में काम कर सकते हो। आप वर्ड फाइल गूगल डॉक्स में काम कर सकते हो, आप 4 आदमी मिलके एडिट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा करिश्मा है सर, कि आज के डेट में ये कभी सोचे नहीं थे कि हमने काम किया, फिर हम एक जन को भेज रहे हैं, फिर वो अप्रूव कर रहा है, फिर वो ला रहा है, कितना समय वेस्ट होता था। अब वो लाइव कर सकते हैं। लेकिन एक बात जैसे बताता हूँ, ऑनलाइन टूल और ऑफलाइन टूल में कुछ कमी जरूर रहेगी, लेकिन हमें ये चुनना है कि हमें ज्यादा बेटर टूल चाहिए कि ज्यादा कन्वीनियंस चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए, ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए, ज्यादा ट्रैकिंग चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स? कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। या मिस्टर बांसल, सो वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? Devinder प्लीज ji, म्यूट please अनम्यूट kindly. योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Devinder ji, हाँ जी, you have a duty to forward the proposal of vote of thanks, sir. हाँ जी, so should I do it now or we have 2-3 minutes? Just Shashipal ji, check and confirm whether there is any query from member or not. Okay, okay. हाँ Mr. Bansal, you have some query to please? मेरे को जो लग रहा है, जो इनको सुनने के बाद के वी नीड वन मोर सेमिनार इन डिटेल। Yes, one This full. is one of the best thing that if we are office will be a paperless na, then we can manage our office from home also. So a detailed seminar, we need your detailed presentation on this topic later on. एक लाइन बोलूंगा सर आपको जतेंद्र जी, 3 चीज की बात याद रखिएगा। पहला चीज है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो है माइंडसेट। अगर आपने सोच लिया और दृढ़ता से सोच लिया और एकदम अपने आप को कमिटमेंट दे दिए कि भैया मुझे ऑफिस को वर्चुअल करना है, वो हो जाएगा सर। दूसरा, हमारी गलती क्या होती है
कि हम हमेशा एक अच्छा सॉफ्टवेयर खोजते हैं और अपनी ऑफिस में किसी को बुला के बोलते हैं कि भैया तू इसको इंस्टॉल कर। ये रॉन्ग है सर। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ड्राइव करना होगा, ये चेंज आपको लेके आना पड़ेगा। ये एक चेंज जिसको बोलते हैं ना, ये बटरफ्लाई टू कैटरपिलर की रेस है सर। एक कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बनता है तो बहुत मेहनत के साथ, बहुत तकलीफों के साथ वो अपने आप को बदलता है। ये बदलने का समय है सर, और ये आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई हमें एक शॉर्टकट मिल जाए, हमें कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए, एक ऐसा गुरु मंत्र मिल जाए जिसको हम सुने और हम किसी को बताएं। ये जर्नी है सर, और इस जर्नी में आपको समय लगेगा, 6 महीने। कुछ कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा, कुछ गलतियां आप करोगे, कुछ ये होगा, बट आपकी दृढ़ता, आपका प्रिंसिपल, आपका कमिटमेंट, आपका एकदम स्ट्रॉन्ग एक्शन कि टीम को बोलना है कि भैया, जैसे मैं कई एग्जांपल जाता हूँ, लोग जाके हार्ड डिस्क बंद कर देते हैं, लोग जाके ये कर देते हैं, भैया अब तुमको इसी में ही काम करना है, तुम कैसे करोगे तुम देखो। ये बदलाव लाना पड़ेगा, तब आप अपनी ऑफिस को पेपरलेस कर पाएंगे। वरना ऐसा कोई बटन नहीं बना सर कि एक बटन दबा के हम पेपरलेस हो जाएंगे। इस जर्नी को पूरा करना पड़ेगा। तो माइंडसेट पहली चीज है सर। दूसरी चीज है स्किल सेट, कि आप अब नई स्किल्स को एक्वायर कीजिए। मतलब आपको अब एक्सेल सीखना पड़ेगा, एडवांस एक्सेल में जाना पड़ेगा, आपको पावर बीआई सीखनी पड़ेगी, आपको डेटा एनालिटिक्स में आगे बढ़ना पड़ेगा। कि अब जो समय है, जैसे मैं इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूँ, हमारे यूएस में जो क्लाइंट है, हम लोग एक भी डेटा एंट्री का काम नहीं कर रहे हैं जो हम 20 साल पहले कर रहे थे। हम कोई भी कंप्लायंस नहीं कर रहे, वो सब हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन उसके बाद भी हम सक्सेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम उनको ऐसी रिपोर्ट्स दे रहे हैं जो अपने आप उसमें से जाके सब कुछ खींच लेती है और एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड बन जाता है। तो हमने अपनी अपनी सोच को वैसे बनाया कि समय रहते हम अपने आप को उसमें, जो 20% फैक्टर है वो है टूल सेट, कि हम कौन सा टूल्स यूज करें। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सब टूल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे देते हैं, हम लोग टूल्स के पीछे फोकस कर लेते हैं, अब माइंडसेट और स्किल सेट के पीछे फोकस नहीं करते। तो ये सोच लानी पड़ेगी कि पहले जो कुछ करना है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे करना है, मुझे ड्राइव करना है, मुझे इसको आगे लेके आना, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को हमने खड़ा किया है, तो इसको आगे हम लेके जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, देखिए वेबसाइट तो बना लेते हैं, गूगल बिजनेस में भी चले जाते हैं, बट वहां पे हिट्स नहीं आती। सो कोई ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस हैं जो एसईओ को चलाने के विजिबिलिटी में काम आए? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया सर। पहली चीज है कि आप, एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं एसईओ, Yeah. वो हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपकी वेबसाइट खूबसूरत नहीं भी हो चलेगी, वो प्राइमरी फैक्टर। आपके website में ऐसे कंटेंट होने चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए कि लोग उसको पढ़े, लोगों को आपके वेबसाइट में जाने का रीजन मिले, उसकी कोई नीड फुलफिल हो, उसको कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल, और उसके बाद आपको कई तरह से उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डालना पड़ेगा ताकि पास आप पहुंच सको। एग्जाम्पल, अगर आपने एक छोटा सा, रोज आप एक आर्टिकल बना रहे हो, एक हफ्ते में एक दिन आपने कुछ ऐसा बनाया जो बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, आपने अपने डेटाबेस में, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे कोई भी मीडियम से आपने प्रोपोगेट कर दिया, उसमें आपने बोला फॉर मोर डिटेल्स क्लिक ऑन दिस, तो कर रहे हैं वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो इससे आपकी साइट में हिट्स बनना शुरू हो जाएगा, लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और जब वो वेबसाइट में आ रहे हैं आप उसको पकड़ने की कोशिश करो थ्रू योर सीआरएम टूल्स। आई थिंक the journey which you have to take and continuously doing it. Thank you. Thank you. Devinder ji, we will plan soon, very soon, virtual office seminar with Sanjeev ji. Sure. Thank you so much everyone. Sir, please propose a vote of thanks for him. Yeah. स्पेशली सर जो आपने वो बताया ना, इवन हम अपने ब्रांच की जो अपना वेबसाइट है, दैट कैन आल्सो बी डन बाय द ब्रांच ऑफिशियल्स। इट्स आल्सो गुड गो, वी आर प्लानिंग फॉर द सेम। एकदम सर। थैंक यू। Thank you, sir. Mr. Chairman, for assigning me this pleasant opportunity to propose vote of thanks to the wonderful and a brilliant speaker, Sanjeev Sanghi, a co-opted Central Council member,
from Kolkata. So I'm really delighted to, we have delighted to listen his speech, and he started his address by saying Sat Sri Akal, because he came to Punjab addressing the Punjabi, chartered accountants. So I would say, I will reciprocate by saying, Apne ka aneka dhanyavad. So I will extend my thank you in Bengali, and wish you very best of luck and whatever you're doing. So please keep on doing this brilliant endeavor. And I think this session is actually a thought-provoking seminar, and this session will definitely help us in making ourselves digitally equipped. I would like to place on record one thing. So when Mr. Chairman Sanjay Arora ji, has called me, and he says, Kabir, you have to speak on this 3 days back. I told him, Sanjay, so I am to address one virtual meeting. So I'll come at 11, speak, and then I'll go at 11:15. But it is such a wonderful presentation. So I could not, think of going away from my laptop for the entire session. So that shows your brilliance. Thank you very much once again. Thank you. Thank you, sir. Devinder ji, please, Devinder ji, don't go away.